Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I have already discussed dissolution of partnership formats. Today I am going to do the question related to this topic and going to explain each and every aspect of the question and its answer. Now first I am moving towards the question. First, I will explain the details of questions and how you will get the information from the question, and then I will explain how will you put these information into the formats. Okay, I am moving towards the question. This is the question. I have told you in the format video, you should get three informations. Yeah, you will get three informations from the question. And whenever you see the question, you will go to the question and find out these three informations. First one, what is the profit sharing ratio between the partners, which is given in the second line of this question. And then where is the statement of financial position, which is given below the above three lines. And the date of the financial statement is 30th June 2013. And then you will get the other information which will relate to the dissolution entries. I am also telling you the number of question. This is the past paper question, A-level past paper questions, and paper is October-November 2013, and paper is 4-1 and question number 2. Again, I am repeating, A-level past paper question, year and session October-November 2013, paper 4-1 and question number 2. And the three information which is required to solve the whole question, what is the profit sharing ratio, which is given here in the second line of the question, that is 3:2:1, and the partners are the Leap and Ephraim and Fonzie. But I will use the first letter of these names, D for the Leap and Ephraim E and Fonzie F. These are three partners which are sharing profit and loss 3:2:1, and this is the financial statement of the that partnership business. But now they have decided to wind up the business, and we will go to record the winding up entries of the business. Means कि dissolution of partnership को अब हम record करेंगे next. तो हम we got all these three information which is required to record the dissolution entries. First, profit sharing ratio. Second, statement of financial position. And third, other information which is related to the dissolution entries. And I have told in the first lecture, in my first lecture related to dissolution, if you will take the financial statement first and transfer all these balances in relevant accounts. And what are the relevant accounts? First is realization account, second is current account, and then capital account, and then bank account. First, we will transfer all these information from the statement of financial position to relevant accounts, and then record these other information entries which is related to the dissolution. Now, I am going to start the realization account first and transferring all the balances of relevant information into the realization account. This is the realization account, and I have told you you will take the information from the SOFP, statement of financial position, and record all assets value from the financial statement of financial position on the debit side of realization account, and trade payable value on the credit side of the
realization account. Now, I am going to record the assets details from the SOFP on taking from the SOFP and recording in the realization account. And what are the details of these assets? I am starting from the first asset, which is land and building. And land and building 195,000, which is given in the statement of financial position. You can tally these figures with the SOFP. Fixtures and fitting 32,645, and motor vehicle 43,750, inventory 29,875, and trade receivables are 19,765. I have told you in the format, you should not carry the bank balance as an asset in the realization account. मीन्स कि आपने बैंक का बैलेंस जो है वो कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना. आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल एसेट्स in the realization account, assets value from the statement of financial position in the realization account, then move to the trade payables value only. आपने कोई और लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफर नहीं करनी. ओनली ट्रेड पेएबल वैल्यू जो है वो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, और बाकी जो लाइबिलिटीज हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर कर दूंगा. जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्मेट कि हमने बाकी लाइबिलिटीज को कहाँ रिकॉर्ड करना है. तो अभी के लिए हमें सिर्फ ट्रेड पेएबल की वैल्यू चाहिए, और वी विल रिकॉर्ड ट्रेड पेएबल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट होती है, तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, और दैट इज ट्रेड पेएबल वैल्यू 14,650. अब आप इन वैल्यूज को एसओएफपी के साथ टैली कर सकते हैं. दीज आर एग्जैक्ट वैल्यू विच आर प्रोवाइडेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. जो उसमें है वही मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की हैं. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी वहीं से पिक की है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग की भी, मोटर व्हीकल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल, सारी वैल्यूज वहां से मैंने गेट की हैं. तो जब हम ये रियलाइजेशन अकाउंट में ये वैल्यूज रिकॉर्ड कर लेंगे तो देन हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ मूव करते हैं. तो जो नेक्स्ट अकाउंट हम स्टार्ट करेंगे वो करंट अकाउंट है. करंट अकाउंट मैंने कॉलमियर फॉर्मेट में आपने हमेशा बनाना है. 3 पार्टनर्स थे, डी, ई एंड एफ, दिलीप एंड सो व्हाट जो भी नेम थे उनके, तो मैंने उन शॉर्ट्स में ले लिया था डी, ई एंड एफ. तो अब हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे. तो चेक करते हैं. डी एंड ई का जो करंट अकाउंट का बैलेंस था वो नॉर्मल था, वो तो मैंने उन्हें क्रेडिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया. 33,865,24,910 ये एसओएफपी में एग्जैक्टली गिवन है बिलो द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस, और इसे मैंने क्रेडिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया. और सिमिलरली जो एफ था उसका जो बैलेंस था करंट अकाउंट का वो नेगेटिव गिवन था इन एसओएफपी, तो उसे मैंने डेबिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया. क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट बाय नेचर क्रेडिट होते हैं, तो इनके नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पे और नेगेटिव बैलेंस डेबिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड होंगे. तो ये मैंने करंट अकाउंट का बैलेंस एसओएफपी से पिक करके तीनों पार्टनर्स के रेलिवेंट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिए हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे टू कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो कैपिटल अकाउंट होएगा. उसमें भी कॉलमियर फॉर्मेट यूज करेंगे. डी, ई, एफ 3 पार्टनर्स थे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे डी, ई, एफ के मैंने कॉलम्स बना दिए हैं. तो नाउ वी विल ट्रांसफर द बैलेंसेस ऑफ डी, ई, एफ फ्रॉम कैपिटल बैलेंसेस फ्रॉम द एसओएफपी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी बाय नेचर क्रेडिट है, और तो ये क्रेडिट साइड पे ही बैलेंसेस आने हैं. तो डी, ई, एफ के हमने 60, 50, 40 these are exact value which is given in the SOFP. ठीक है, ये वही वैल्यूज हैं विच आर गिवन इन द एसओएफपी, जो एसओएफपी में आपको प्रोवाइड की हुई हैं, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर दी. अब उसके बाद लास्ट आ जाता है आपके पास बैंक अकाउंट. लास्ट वन इज द बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है अब हमने देखना है कि इज दिस गिवन इन द एसेट साइड और इन द लाइबिलिटी साइड. क्योंकि अगर करंट लाइबिलिटी में बैंक अकाउंट होगा तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, तो हम उसे क्रेडिट साइड पे हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे. और अगर एसेट साइड पे मतलब एसेट में दिया हुआ है तो डेबिट होगा, तो हम उसे डेबिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे. तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें बैंक अकाउंट एसेट है कि लाइबिलिटी है. तो बैंक अकाउंट एसेट है, तो इसको हमने बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ऑन डेबिट साइड कर दिया है. ठीक है, अगर आप लोगों को ये ज्यादा अच्छा लगेगा, आई विल ट्राई टू शो द क्वेश्चन विद ईच स्टेप. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि पैरेलल आपको क्वेश्चन शो करूं वीडियो में. तो
तो ये आपको विजिबल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं भी है तो आप अपने पास, मैंने क्वेश्चन नंबर बता दिया, आप अपने पास क्वेश्चन खोल के रख लें और फिर साथ इस वीडियो को चेक करें, आपको समझ आ जाएगी। तो ये बैंक बैलेंस भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब मैं बैंक में हमने एट द सेम टाइम एसओएफपी में अगर कोई और लायबिलिटी है जैसे ट्रेड पेएबल तो हमने रियलाइजेशन में रिकॉर्ड कर दिया। उसके अलावा भी कोई लायबिलिटी है जैसे अक्रूड एक्सपेंस है कोई, तो वो हम बैंक की पेमेंट साइड पे डायरेक्टली पे कर देंगे। और इसके अलावा कोई बैंक लोन है, जनरल लोन है, तो वो भी हम बैंक की क्रेडिट साइड पे सेटल कर देंगे। तो अदर पेएबल इसमें दिए हुए थे, मतलब कोई अक्रूड एक्सपेंस था वो मैंने पेमेंट साइड पे क्रेडिट पे डाल दिया। और इसके अलावा बैंक लोन भी था, तो वो लोन भी मैंने पेमेंट साइड पे डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया। 100,000 का लोन था, वो मैंने पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया डायरेक्टली। लोन जो भी होगा वो आप क्रेडिट साइड पे वो रिकॉर्ड कर देंगे, अदर पेएबल्स को रिकॉर्ड कर देंगे और बैंक का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीज ट्रांजैक्शंस या दीज आइटम्स, आपकी एसओएफपी का कोई ऐसा बैलेंस नहीं बच जाएगा कि जो किसी अकाउंट में ट्रांसफर ना हुआ हो। जब आप ये सारे एसओएफपी के बैलेंसेस ट्रांसफर कर लेंगे तो देन मूव टू द अदर इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बिलो द एसओएफपी। आप उस इंफॉर्मेशन पे चले जाएंगे और वहां से आप सबसे पहली जो एंट्री फाइंड आउट करेंगे वो एंट्री होगी आपकी वो ट्रांजैक्शन कि जो पार्टनर ने अपने यूज के लिए एसेट लिए हैं। जो आपने पार्टनर ने अपने जो पार्टनर ने अपने यूज के लिए एसेट लिए हैं वो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे है। तो रिकवरी जो जिस फॉर्म में भी होगी हम उसे क्रेडिट करके वहां से रिमूव कर देंगे और पार्टनर्स के, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स है पार्टनर की, तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे चली जाएंगी। यहां हम रियलाइजेशन अकाउंट में एनी एसेट विच इज टेकन बाय द पार्टनर एट वैल्यूएशन, उसको वैल्यूएशन पे लेना है और उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे विद द नेम ऑफ करंट अकाउंट। तो यहां जिस भी पार्टनर ने लिए हैं, जैसे यहां दो पार्टनर्स ने लिए थे, ई एंड एफ ने, एक 10,000 में ली थी और दूसरा मोटर व्हीकल थी और दूसरी 7,500 में उसने मोटर व्हीकल टेक ओवर की थी। अब हमने ये नहीं देखना उनकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, जिस वैल्यू पे पार्टनर लेके जा रहे हैं उसी वैल्यू पे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। ये ग्रीन ट्रांजैक्शंस आपको नजर आ रही होंगी करंट अकाउंट के नाम से, ई एंड एफ की। और सिमिलरली यही ट्रांजैक्शन हम करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे विद द नेम ऑफ रियलाइजेशन। तो डी एंड सॉरी ई एंड एफ की थी, तो ई में हमने 10,000 रिकॉर्ड कर दिया, ई का था, और एफ के 7,500 था, उसकी डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शन नो अदर ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। यू शुड इमीडिएटली बैलेंस द करंट अकाउंट। ठीक है, इसके फौरन बाद जैसे ही आप ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर लेंगे आप रियलाइजेशन करंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रेलिवेंट पार्टनर कॉलम। जो भी पार्टनर का कॉलम है उसमें ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में। तो अब हम चेक करते हैं हैवियर साइड किसकी कौन सी है। लाइक जैसे डी को अगर आप चेक करें तो उसकी डेबिट साइड हैवियर है और उसका टोटल मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है बोथ साइड पे डी कॉलम में। तो अब इसका जो डिफरेंस होगा उसको बैलेंसिंग फिगर को मैं कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। सिमिलरली ई और एफ में भी यही पॉलिसी होगी कि हैवियर साइड का टोटल ऑन बोथ साइड्स और जो भी डिफरेंस निकलेगा वो कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड होगा। तो अभी चेक करते हैं, डी में तो एज इट इज 33,865 ही डिफरेंस निकल आया, तो वो कैपिटल में चला गया। और इसी तरह ये देखें, डी में 33,865 ही डिफरेंस था, वो हमारा कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो इसी तरह ई में जो डिफरेंस निकला है वो 14,910 का, टोटल 24,910 था। हैवियर साइड ये थी इसकी क्रेडिट और डिफरेंस डेबिट साइड पे निकला 14,910, वो हमने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। और ई के इन केस ऑफ एफ तो उसकी जो हैवियर साइड है वो डेबिट साइड हैवियर है, 1875 डेबिट साइड पे 7,500 और उसकी क्रेडिट साइड पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसकी डेबिट साइड हैवियर है जिसका टोटल बनता है 9,375। वो मैंने आई हैव प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स 9,375 और जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पे निकलेगा इसका कैपिटल अकाउंट के नाम से, उसे भी मैंने कैपिटल अकाउंट के नाम से ही प्लेस करूंगा। तो अब यहां पे देखें, दो के बैलेंसेस जो निकले हैं वो डेबिट साइड पे हैं, तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा क्रॉस एंट्री होती है ना, यहाँ डेबिट है तो वहां क्रेडिट हो जाएंगे। और इसी तरह एफ का जो है वो क्रेडिट साइड पे बैलेंस निकला है, तो यहाँ पे क्रेडिट है तो एफ के कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट चला जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में वाकई ऐसा हुआ है। तो अब हम कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं।
ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो पहले से लिखा हुआ था, अब हम इसमें देखते हैं कि करंट अकाउंट ट्रांसफर करते हैं तो किस साइड पे होंगे। डी और ई के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होने थे, जो डिफरेंस था 33,865 एंड 14,910, वो इधर ट्रांसफर हो गया। और सिमिलरली एफ का क्योंकि वहां पे क्रेडिट था तो यहाँ डेबिट 9 ट्रांसफर हो जाएगा, वो 93,9,375 था, वो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। अब ये बैलेंसेस हो गया ट्रांसफर, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये करंट अकाउंट के, और डी और ई क्रेडिट साइड पे और एफ डेबिट साइड पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद हम दोबारा रियलाइजेशन अकाउंट पे अगेन वी विल मूव टू द रियलाइजेशन अकाउंट, और अब हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे कि जितनी वैल्यू पे हमारे एसेट सेल हुए हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमने पेमेंट्स की हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एसेट सेल किस वैल्यू पे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन में आप देखेंगे, आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग की डिटेल्स पता चल जाएंगी कि उसको किस वैल्यू पे सेल किया। तो वो उन्होंने कहा कि जनाब जो है हमने, और इस ट्रांजैक्शन को हमने बैंक के नेम से रिकॉर्ड करना ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमारे एसेट्स डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हैं। तो अब हम उनको क्योंकि सेल आउट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड पे बैंक के नेम से रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग को देखते हैं। तो उसने कहा था कि जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसके 10% ज़्यादा वैल्यू पे हमने उसे सेल किया। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 195,000, तो 10% लेके उसमें ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी 214,500। या आप डायरेक्टली 195,000 का 110% लेंगे तो उसमें 10% ऐड होके यही वैल्यू आएगी, वो रिकॉर्ड कर देंगे। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे उसने फिक्सचर्स एंड फिटिंग कहा था कि 80% ऑफ कॉस्ट पे ये रियलाइज हुई है या सेल हुई है। तो ये 32,645 उसकी कॉस्ट थी, उसका 80% लिया तो वो 26,116 आया। तो उस पे ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग रियलाइज हो गई यानी सेल हो गई। और मोटर व्हीकल की उसने एग्जैक्ट वैल्यू बताई हुई थी 18,500, उस पे ये सेल हुई है। कुछ तो वो ऑनर्स ने टेक ओवर कर ली थी पार्टनर्स ने, और बाकी जो बच गई वो 18,500 में सेल हो गई। और इन्वेंटरीज के बारे में स्टेटेड है कि वो 21,000 में सेल आउट हुई है, वो हमने रिकॉर्ड कर देनी है क्रेडिट साइड पे। और देन ट्रेड रिसीवेबल से जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो 15,750 है, वो रिकॉर्ड करके इन सारी वैल्यूज का टोटल करके हम लास्ट कॉलम में लिख देंगे, और यही अमाउंट 295,866 जो इन सब का टोटल है, ये बैंक के नाम से हमारी रिकॉर्ड हो यानी बैंक के उसमें बैंक में रियलाइजेशन के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगी। और फिर अब उसके बाद हम देखेंगे जो हमने उनको पे किया ट्रेड पेएबल्स को, तो वो बैंक के नाम से हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे। वो 12500, ये भी अवेलेबल है क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन में। और उसके बाद जितनी हमारी डेजोल्यूशन कॉस्ट है वो भी बैंक के नाम से डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर देंगे 3450 की। अब यहाँ पे मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट की इटसेल्फ कोई नेचर नहीं होती डेबिट या क्रेडिट, बल्कि हम इसमें जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो ट्रांजैक्शन की नेचर पे हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे ट्रेड पेएबल्स बाय नेचर क्रेडिट होते हैं, जब पे करेंगे तो पेएबल्स को हमें डेबिट करना है तो हम रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे क्योंकि पेएबल ऑलरेडी इसमें ट्रांसफर हो चुके हुए हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो वो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब यही ट्रांजैक्शंस हम उठाएंगे, जो यहाँ पे डेबिट हो रही हैं वो बैंक में क्रेडिट हो जाएंगी, और जो यहाँ पे क्रेडिट हो रही हैं वो बैंक में डेबिट हो जाएंगी। वो हमने 295 रिसीव किया था, 295,866 हमने रिसीव किया था, और इसी तरह दो पेमेंट्स हमने की थी। 295,866 हमने रिसीव किया था, और दो पेमेंट्स हमने जो की थी, एक तो 12,500 की पेबल्स की थी और दूसरी हमने डिसोल्यूशन कॉस्ट की थी। आपको अदर इन्फॉर्मेशन में सारी मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन। अब जो हमने रिसीव किया था वो यहाँ पे क्रेडिट हुआ था तो बैंक में डेबिट हो जाएगा। बैंक में आप देखते हैं डेबिट हो गया, वो रियलाइजेशन के नाम से एसेट सोल्ड वैल्यू 295,866, ये वो वैल्यू थी जिसपे हमने सारे एसेट को सेल किया था। तो वो एक ही दफा हमने लिख दिया क्योंकि सारी वर्किंग हमने रियलाइजेशन में शो कर दिया, तो यहाँ एक ही दफा हम रिकॉर्ड कर देंगे।
इसी तरह जो हमने पेमेंट्स की थी, सबसे पहले हमने ट्रेड पेएबल्स की रियलाइजेशन रिकॉर्ड की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पेमेंट हुई है, बैंक डिक्रीज हुआ, क्रेडिट साइड पे आ गया। फिर हमने डिसोल्यूशन कॉस्ट जो हमने पे की थी वो भी हमने क्रेडिट साइड पे डाल दी 3450 की। तो ये पेमेंट्स भी रिकॉर्ड हो गई और रिसीट्स भी रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो मैंने आपको कहा था कि नाउ वी विल बैलेंस realization account. Now we will balance the, मैं again repeat कर रहा हूँ, we will balance after recording all these transaction, क्योंकि ये जितने मैंने आपको बताई हैं ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। अब अदर इंफॉर्मेशन की भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं रह गई, हमने सारी रिकॉर्ड कर ली। जो एसेट्स ऑनर ने टेक ओवर की है वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली है, वो आप देख लें। ये करंट अकाउंट के नाम से जो टेक ओवर किए थे वो रिकॉर्ड हो गया, जितने पे हमारे एसेट सेल हुए वो भी रिकॉर्ड हो गया, ये सारे के सारे जितनी हमने पेमेंट्स की थी वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। सारी ट्रांजैक्शंस हमने अदर इंफॉर्मेशन वाली भी रिकॉर्ड कर ली, एसओएफपी वाली भी रिकॉर्ड कर ली। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वी विल बैलेंस आउट द रियलाइजेशन अकाउंट एंड डिफरेंस शुड बी divided or distributed among all partners according to their profit sharing ratio. तो इसमें हैवियर साइड का टोटल हम प्लेस कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। हमने चेक कर लेना है कि इसकी डेबिट साइड हैवियर है या क्रेडिट साइड हैवियर है। इन दिस केस जो है इसकी डेबिट साइड हैवियर है, तो डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड पे निकलेगा, तो उसे हमने कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखना है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा ये कैपिटल अकाउंट का वर्ड क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है मैंने। इसकी डेबिट साइड हैवियर है जिसका टोटल है 336985, तो वो दोनों साइड पे हमने प्लेस कर दिया ये टोटल, और उसके बाद डिफरेंस यहाँ पे निकला, वो डिफरेंस कितना है उसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये रेशियो थी 3:1, तो वो उसका जो फ्रैक्शन बना 3/6 डी के लिए, डिफरेंस जो था वो 8969, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये डिफरेंस 8969 का यहाँ मैंने लिखा हुआ है। उसी को 3:6 यानी डी की फ्रैक्शन बनी 3:6, क्योंकि 3:1 था ना, सम किया तो 3 + 2 + 1 6, तो डी की फ्रैक्शन बनी 3/6 और ई की बनेगी 2/6 और एफ की बनेगी 1/6। तो ये डी को हमने किया, जितनी भी वो डिफरेंस था 8969 उसको 3/6 करके जो उसके पास आंसर आया 4484। हमने इसको डेसिमल्स में नहीं रखना होता, राउंड करके हमने होल नंबर्स में लिखना होता है, तो वो 4484 आया। देन ई का जो 2/6 बनी रेशियो, तो उसको हमने निकाला तो वो 2990 आ गया। और सिमिलरली जब एफ की बारी आई तो वो 1/6 थी, तो वो बनी 1495, और इन सब का टोटल जो है वो 8969। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये बेसिकली रियलाइजेशन लॉस है, क्योंकि आपके जो एसेट्स की वैल्यू है वो ज्यादा है, जो उनसे रिकवरी हुई है वो क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है वो कम है, इसीलिए आपकी डेबिट साइड हैवियर है। एसेट्स की फिर बता रहा हूँ वैल्यू ज्यादा होने की वजह है कि डेबिट साइड हैवियर है, इसलिए एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, और रिकवरी क्रेडिट साइड पे रिकवरी हुई थी वो कम है, तो इसीलिए ये डिफरेंस क्रेडिट साइड पे निकला है, और ये आपका रियलाइजेशन लॉस है। और ये हम कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन लॉस के नाम से डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन लॉस जो है वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ क्रेडिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन लॉस डेबिट हो जाएगा। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे। ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट आ गया। अब इसमें हम रियलाइजेशन लॉस को प्लेस करते हैं ऑन डेबिट साइड, तो ये रियलाइजेशन लॉस जो हमारा निकला था 4484,299,01495, ये पीछे हमने कैलकुलेट कर लिया था जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद निकला। उसके बाद अब हम सेकंड लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे और इसकी हैवियर साइड्स कैलकुलेट करेंगे। इन दिस क्वेश्चन तीनों कॉलम्स में डी, ई एंड एफ में इनकी क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट की हैवियर है, और डिफरेंस इनका डेबिट साइड पे निकलेगा, तो वो मैं निकालता हूं। सबसे पहले हम डी का डिफरेंस देखते हैं, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड डी की हैवियर है, उसका टोटल बना 93,865, वो दोनों साइड पे मैंने प्लेस कर दिया हुआ है ये डिफरेंस, और जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो यहाँ पे प्लेस होगी, क्योंकि ये स्मॉलर साइड है, और वो अभी हम देखते हैं कितनी निकलती है। तो बैंक बैलेंसिंग फिगर 89381 डी की निकली है, और ई की 61920, और सिमिलरली एफ की निकली है 29130। मैं फिर बता रहा हूं कि इनकी क्रेडिट साइड हैवियर थी, क्रेडिट साइड हैवियर होने की वजह से वही टोटल्स तीनों कॉलम में उनके रेलिवेंट कॉलम में प्लेस हो गया डेबिट और क्रेडिट साइड पे, और डिफरेंस हमने यहाँ पे बैंक के नाम से डेबिट साइड पे प्लेस कर दिया, क्योंकि जो भी कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस निकलेगा वो बैंक के नाम से हम प्लेस करेंगे और उसे हम बैंक में ले जाके क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस सीएफ नहीं होगा, बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, इसके बाद फर्दर कंटिन्यू नहीं होना, इसलिए इसके क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होंगे।
हर बैलेंसिंग फिगर किसी नेक्स्ट अकाउंट में जाके क्लोज हो जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हम, क्योंकि कैपिटल ऑनर के जो कैपिटल है उनको एंड में हमने बैंक से सेटल करना है, तो जो भी डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया बैंक के नाम से। तो इसके बाद हम चलेंगे बैंक अकाउंट की तरफ। जो हमने डिफरेंस निकाला था कैपिटल अकाउंट में वो अब हम बैंक अकाउंट में प्लेस कर देंगे। वहां डेबिट साइड पे था तो यहाँ क्रेडिट साइड पे हम कैपिटल अकाउंट प्लेस कर देंगे। जो भी डिफरेंस निकला था डी ई एंड एफ का कैपिटल अकाउंट के नाम से 89,381,619,293 ये हमने प्लेस कर दिया डिफरेंस। और उसके बाद हम बैंक का करेंगे टोटल, और बैंक टोटल शुड बी इक्वल, यानी उसकी डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मींस आपने सॉल्यूशन में कहीं कोई एरर किया। तो मैं ये टोटल मैं करता हूं, तो ये दोनों टोटल, ये डेबिट साइड का मैंने टोटल किया 302,716, और सिमिलरली जब क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो भी यही निकला 302,716। दिस मींस कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। तो ये सारी समरी थी इस क्वेश्चन की जो मैंने आपको बताया, पूरी डिटेल्स आपको बताई है कैसे रिकॉर्ड करना है। आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं ओवरऑल सारे अकाउंट्स की एक समरी आपको शो कर देता हूं स्लाइड पे। ये सारे अकाउंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें देखें सारी ट्रांजैक्शंस वो हैं जो हमने सबसे पहले ब्लैक कलर में, वो ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने बैलेंसेस ट्रांसफर किए थे एसओएफपी से। वो सारे बैलेंसेस ट्रांसफर हुए ब्लैक कलर में है। देन फिर हमने करंट अकाउंट की एंट्री की, जो ऑनर ने टेक ओवर की, वो यहाँ क्रेडिट हुई, करंट में डेबिट। फिर हमने करंट अकाउंट को बैलेंस किया और यही बैलेंसिंग फिगर हमने ट्रांसफर कर दी कैपिटल अकाउंट्स में। यहां देखें दो के करंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे निकल रही थी, वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट पे चली गई, और एक की क्रेडिट साइड पे निकल रही थी, वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे चली गई। जब ये करंट अकाउंट यहां से फारिग हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग पे जिन पे हमारे एसेट्स रियलाइज हुए हैं। तो जितने में सेल हुए वो हमने बैंक के नाम से स्टेप बाय स्टेप, उसने अलग अलग वैल्यूज बताई हुई थी, इकट्ठी बताता, इकट्ठी लिख देते, अलग अलग बताई हैं तो हम अलग अलग रिकॉर्ड करके बाद में टोटल डाल देंगे। एक ही बैंक के नाम से 295,866, तो ये देखिए बैंक में डेबिट साइड पे 295,866 रिकॉर्ड हुआ है। सिमिलरली जो पेमेंट्स हमने की थी वो हमने पेएबल्स को की, वो बैंक के नाम से रियलाइजेशन में डेबिट हो गई 12500 की, और यहाँ क्रेडिट हो गई। और इसी तरह डिसोल्यूशन कॉस्ट यहाँ डेबिट होगी और यहाँ पे डिसोल्यूशन कॉस्ट क्रेडिट हो गई। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद हमने रियलाइजेशन को बैलेंस किया। बैलेंसिंग फिगर उसकी स्मॉलर साइड पे जो निकली उसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे कि इसकी क्रेडिट साइड पे निकली थी 8969, तो वो हमने उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से तीनों को DEF में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ क्रेडिट हुई तो यहाँ रियलाइजेशन लॉस के नाम से डेबिट हो गई। अगर इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकलती तो वो यहाँ पे रियलाइजेशन प्रॉफिट के नाम से क्रेडिट हो जाती है, अगर रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे निकलती। तो यहाँ पे क्रेडिट में निकली है तो यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस के नाम से वही एग्जैक्ट वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारी निकली थी, वो डिफरेंस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो वो हमने रियलाइजेशन लॉस के नाम से डेबिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया, उसकी बैलेंसिंग फिगर जो निकली इसकी डेबिट साइड में निकली और वो बैंक में चली जाएंगी ताकि बैंक में वो सेटल हो सके, तो वो हमने बैंक के नाम से लिख दिया और वही ट्रांजैक्शंस हमने बैंक में डाल दी हैं। कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ डेबिट हो रही थी, यहाँ क्रेडिट हो गई, और उसके बाद हमने बैंक का टोटल किया तो बैंक का टोटल इक्वल है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू आई है। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आप फर्दर प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप मेरी वेबसाइट को कंसल्ट कर सकते हैं। आपको पता है ये वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने भी शो हो रहा होगा www.atpworld.net। वहाँ पे पास पेपर्स भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा मेरे टॉपिकल क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से फर्दर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, तो मैं इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ डेजोल्यूशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह फिर मैं फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि परचेज ऑफ बिजनेस है, तो परचेज ऑफ बिजनेस के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।